Good morning, student. Today we will learn about a new medicinal plant that is known as Tinospora cordifolia. What's its local name? Giloe amrita. I think all of you are aware what are giloe. गिलो भी बोल देते हैं हम इसे. And other name is of this Ayurvedic name of is amrita. Gudchi also, and Giloe is its Unani name, and Hindi name is Giloe Gurcha. And what we can use the parts, stem, roots, and whole plant can be used. What are therapeutic use? It is used in malaria, chronic fever. It is also used as a liver tonic. Plant is used in general debility, loss of appetite, fever, urinary disorders, diabetes, rheumatism, and dyspepsia. Fresh plant is more effective than the dried plant. So fresh can be used as a tonic. What are morphological characteristics? Giloe is a twinner. Stem is up to 2 centimeter in diameter with the bark is corky. Stem and branches are specked with white vertical lenticles. Bark is grey brown and creamy white. Papery, thin and peels off easily. Leaves are 5 to 15 centimeter, ovate and acute. They are membranous when young but become more leathery with age. So floral characteristics, flower are yellow, unisexual, minute, less than 2 millimeter in size. And fruit is an wide and succulent, red in color, size is as large as pea only, having a single seed. Seed is fleshy and curved. Flowering occur in May, June, while the fruiting is in September, October. And among distribution, this species is endemic in India and is common throughout tropical and subtropical zones at an altitude of 600 meter. What are climate and the soil? Climate and the soil is they are as subtropical and tropical climate is suited. Soil is sandy loam soil, rich in organic matter with more drainage capacity. It does not tolerate high rainfall or waterlogged conditions. Propagation method, stem cuttings are best material for raising commercial crops और mostly जो cutting है can be obtained from mother plant in जून जुलाई में हम कटिंग लेनी है और plant can also be raised using seeds, but जो seed है they take more time, double the time to mature and yield the same quantity of drug. We can use the nursery techniques also. What are nursery techniques? Raising propagules. जो स्टेम कटिंग्स है उनको हमने डायरेक्टली जो है सोन करना है फील्ड में. कटिंग आर obtained फ्रॉम ओल्डर स्टेम विद नोट्स. ठीक है, उसमें जो हमने पुराने वाले स्टेम से हमने कटिंग देखनी है तो उसमें नोट्स होनी ज़रूरी है. आई थिंक नोट्स एंड इंटरनोड पार्ट इज़ क्लियर विद यू. Cutting should be sown within 24 hours of their removal from the mother plant. And they should be half dipped in water vertically. Meanwhile they should be half dipped in water vertically. कटिंग लेकर वाटर में डिप करके हमने नेक्स्ट विद इन 24 आवर उनको लगा देना है. तो कटिंग हमने कब लेनी है? जून जुलाई में लेनी है. और और कटिंग में ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक नोड होनी ज़रूरी है. प्रोपेग्यूल रेट एंड प्री ट्रीटमेंट कैसे करनी है? 2500 कटिंग्स जो है चाहिए हमें 1 हेक्टेयर के लिए. 2500 फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर वॉशिंग. बस हमने कटिंग लेनी है
और जो अभी मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं वही करनी है हमने। उसके बाद प्लांटिंग इन द फील्ड कैसे करनी है, पहले हमने करनी है लैंड प्रेपरेशन एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इसमें क्या करना है कि लैंड जो है उसको हमने प्लोइंग करनी है, हैरोल्ड करना है। उसके बाद वीड फ्री उसे करने के बाद हमने फार्म यार्ड मैन्योर जो है एट द रेट ऑफ 10 टन्स पर हेक्टेयर, 10 टन पानी है हमने 1 हेक्टेयर में। एंड हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन मतलब 75 kg अप्लाइड एट द टाइम ऑफ द लैंड प्रेपरेशन, नाइट्रोजन हमने करनी है। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग एंड ऑप्टिमम स्पेसिंग, जो स्टेम कटिंग हमने ली है विद नोट्स आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड। ऑप्टिमम स्पेसिंग रखनी है 3 m by 3 m is recommended for better yield and the plant requires sport to grow। आपने बेल देखी होगी, इसमें जो स्पोर्ट चाहिए दे कैन बी प्रोवाइड बाय रेजिंग वुडन स्टैक्स, वुडन स्टैक्स से हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं। ऑलरेडी ग्रोइंग श्रब और ट्रीज कैन ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट, अगर और कोई खेत में जैसे प्लांट्स हैं उनको उनकी सपोर्ट भी हम दे सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में बिकॉज इट इज़ अ लार्ज ट्विनर है तो इट नीड अ होस्ट टू ट्विन and cover the host in a very short period, and if the stem cutting with aerial roots are thrown over trees they start growing and strike roots in the ground। ठीक है, stem cutting with aerial roots are thrown over trees they start growing and strike roots in the ground। so this is the how we can propagate in the field। then ग्रोथ ऑफ ट्विनर जो है द इंटर रो स्पेस बिटवीन अ प्लांट शुड बी केप्ट वीड फ्री बाय फ्रीक्वेंट वीडिंग करके, होइंग करके हम उनको वीड फ्री रखना है। इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या है, रेन फेड कंडीशंस में इनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इरिगेशन जो है ज़रूरी है एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट कंडीशंस में, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस। और डिज़ीज़ और पेस्ट जो है कोई सीरियस इनकी डिज़ीज़ या पेस्ट नहीं होते हैं। हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्रॉप मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग क्या है, जो स्टेम हमने हार्वेस्ट करना है ड्यूरिंग द ऑटम व्हेन इट डेवलप टू अ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तब हमने इसको हार्वेस्ट कर लेना है। और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग हमने करना है कि जो स्टेम है शुड बी कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसके स्मॉल पीस करने हैं, ड्राई करना उसको शेड में। तो इनको हमने स्टोर करके रख सकते हैं घनी बैग्स में, कूल जगह पे रखना है, एरी स्टोरेज गोडाउन में रख सकते हैं। स्टेम बार्क जो है उसका पील ऑफ इवन वाइल टच, तो जो स्टेम बार्क है वो पील ऑफ हो जाता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके हैं, जो इसमें केमिकल्स होते हैं उनका नाम है गिलोनिन, गिलोस्टिरोल, गाइलैनिन एंड फ्यूरेनोडाइटर्पिन्स। और इसके अलावा एक और है टिनोस्पोरिन, टिनोस्पोरिन जो है इसमें जो इसके मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है कि एक प्लांट यील्ड जो देता है 1500 kg ऑफ फ्रेश वुड देता है, फ्रेश वुडी स्टेम देता है 1500 kg, और इसको ड्राई शेड करके जो है रिड्यूस टू 300 kg ऑफ ड्राई वेट per hectare in about 2 years, and the per hectare cost of cultivation is estimated to be rupees 25,600 per hectare। so this is the all about giloy। thank you।